نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أسرا فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت إليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في على جنة الخلد آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسا ایمان عطا فرمائیں کہ جس میں کبھی بھی ارتداد نہ آئے، یعنی اس میں تبدیلی نہ ہو، اور ایسی نعمتوں کا جو ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا 16واں پارہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور الجزء السادس العشر یہاں سے قال العلم سے جو ہے سورہ الکہف جو ہے ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے، یعنی کہ جتنا دفعہ وہ معاف کر چکے تھے یہ آخری مرتبہ ایسا ہو جاتا۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، بس دونوں نے ایک دیوار تھی جو گرنا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، یعنی اس کی قیمت لے لیتے اس کام کی، تو پھر کھانا وغیرہ کھا سکتے تھے نا۔ اس نے کہا یہ جدائی ہے میرے اور آپ تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے اب اس کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، ان میں سے کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا، تو کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک ظالم یعنی کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اب یہاں رکے ہم سوچتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی بات ہو رہی تھی کہ جس میں کسی کی چیز کو جو ہے وہ نقصان دیا جا رہا تھا، اب وہاں پہ خضر علیہ السلام بتایا کہ وہ کشتی بھی جو تھی وہ کسی مسکین کی تھی، تو یہ باتیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھی، کیونکہ وہ تو سفر پہ نکلے تھے، وہ تو لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو کام کرتے وقت یہ سب باتیں پتہ تھی، اور یہ جو بات انہوں نے کی کہ وہ کوئی آگے جو بھی تھا وہ ان کی صحیح کشتی کو ضبط کر لیتا تو ان کی کشتی کو اس وقت داغدار کر دیا گیا۔ اور اس بارے میں یہاں پہ یہ بھی سوچے کہ جس کی کشتی کو داغدار کیا گیا ہوگا اس انسان نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ کام کیوں اس کی کشتی کے ساتھ ہو گیا۔ تو بعض دفعہ جو آزمائش آتی ہے، بعض دفعہ جو لگتا ہے کسی انسان کو کہ وہ مصیبت ہوتی ہے، وہ اصل میں انسان کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر وہ کشتی داغدار نہ کی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ کرتے خضر علیہ السلام کے ذریعے، تو اس آدمی کی وہ جو پوری کی پوری کشتی تھی وہی اس سے چلی جاتی۔ تو ایک طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اپنا بندہ بھیج کر کے جو ان کے کام میں مصروف تھے ان کی کشتی کو تھوڑا نقصان پہنچا دیا، اور وہ ان سے انہی کے پاس رہنے دی۔ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، اور ہمیں خوف ہوا کہ کہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں، یعنی کہ انہوں نے جس بچے کو جان سے مار دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ انسان تو کسی کی طرف دیکھ کر کے یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کون جو ہے وہ مطلب اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتحال میں اللہ چاہ سکتے تھے تو اس بچے کو زندہ رکھ کے اور نیکی کی طرف لگانا یا جس بھی طریقے سے، لیکن چونکہ اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ علم دیا جا رہا تھا، اور ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بعض دفعہ جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے وہ اس کے اتنے لحاظ سے جو ہے جو دی گئی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور جو باتیں اور کیونکہ مستقبل کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی بس میں نہیں ہوتی، اور وہاں پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی تدبیر اختیار کرنے سے جو ہے وہ کچھ اور کام ہو جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس علم میں سے ہے جس میں سے انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ویسے اس طرح کی پریشانی سے بھی بندہ محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اب یہ بات اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ جب نہیں معلوم تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی جیسے آیات کو پڑھ رہی ہیں تو یہ چیز بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اس طرح سے انہوں نے قتل کر دی، یعنی کہ وہ اللہ کی جانب سے
ये काम किया था। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक आदमी था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे बाप की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो आम सूरत हाल में इंसान दुनिया में बसते हैं, और जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद उन तमाम इंसानों के ऊपर जो है उस वक़्त बनी इसराइल में नबी अपॉइंट हुए थे, उनको नबूवत मिली थी। इस तरह का कोई काम उनके सामने कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। तो दुनिया में कौन किस काम के ऊपर अपॉइंट होता है, उसकी हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ का उस वक़्त इज़हार किया, उनको ये चीज़ बताई। और इसमें जो अच्छी बात तीसरे वाक़ये में सीखने की है, जिस तरह यहाँ पे ये चीज़ बयान की गई आयत में, वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका जो बाप था वो एक सालेह आदमी था। तो देखिए, बाज़ दफ़ा इंसान को नहीं मालूम होता कि उसकी कितनी ज़िंदगी है, या उसके बच्चे जो उनसे हैं वो उससे उनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, या ये कि उनके बच्चे उनसे दूर रहेंगे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ का जो है बच्चों को वालिद के चले जाने के बाद भी जो है उनका ख़्याल रखा। ये हर वालिदैन के ज़हन में ऐसा होता होगा कि अपने घर से अगर दूर हों या उस तरह से, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया गया है वो ये कि उनका बाप एक सालेह आदमी था। तो वालिदैन का जो ख़ास तौर के ऊपर नेक होना होता है, उनकी नेकी होती है, वो ये सोच के भी देखना और करना चाहिए कि उसका असर बच्चों की ज़िंदगी में भी आता है, और उनके लिए जो वालिदैन दुआ करते हैं वो भी जो होता है उन तक पहुँचती है। लाज़िम तौर के ऊपर उन बच्चों के वालिद कोई नेक आदमी थे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की होगी, अल्लाह से दुआ माँगते होंगे, और अब वो जा चुके हैं बच्चों की ज़िंदगी से, उनकी जितनी ज़िंदगी थी वो ख़त्म उनकी हो गई। लेकिन वो यतीम बच्चों को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से, जैसे ये कहना चाहिए कि प्रोटेक्शन की निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ये जो जुमला यहाँ पे बयान होता है ना, वकाना अबूहुमा सालिहा, तो यहाँ से इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला ने उनके वालिद की कोई दुआ कबूल की थी, या ये कि उनके सिलसिले में जो उनके वालिद जो प्रोटेक्शन करके गए थे। और देखिए ये कैसा एक सिस्टम था, उनके वालिद ने किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया, और जो खजाना था अगर वो ज़मीन में दबा के उसके ऊपर एक दीवार तामीर कर दी गई थी, कि कोई भी सिस्टम किया था, तो अल्लाह ताला उस चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और एक अपना बंदा भेज करके, अपनी मखलूक में से भेज करके उस दीवार की प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, ताकि वो नीचे से खजाना ना निकल आए। और वो चूँकि बच्चे अभी यतीम है और छोटे हैं, अगर वो निकल आएगा तो भी वो चीज़ ज़ाया हो सकती है, क्योंकि उनको उनसे उस चीज़ को लूट लेना, चले जाना उस चीज़ का, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। क्योंकि लोगों में जैसे हर ज़माने में अगर खुदा तरसी की कमी होती है जिन लोगों में, तो कोई भी उनको नुकसान पहुँचा सकता है। लिहाज़ा अल्लाह ने उनका बंदोबस्त कर दिया, और ताकि वो जिस उम्र में पहुँचे तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो इसमें बाज़ जगहों के ऊपर अल्लाह ताला की मशीयत ऐसी चुनसी है, वो समझ में आती है कि ये काम उनके हक़ में बेहतर किया गया था। तो ये जो कोई काम होता है हमारी नज़रों में आए बगैर बहुत सारी जगहों पे हो रही होती है, किसी की जब जान जा रही होती है, कोई थोड़ा-सा नुकसान हो रहा होता है, या ये कि कोई चीज़ किसी के हक़ में बेहतर हो रही होती है, और वो बेहतरी आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में क्या होती है, तो ये काम तो अक्सर औक़ात में अल्लाह ताला के फ़रिश्ते या अल्लाह ताला जिस भी मखलूक को भेजते होंगे उनसे करवाते हैं। ज़्यादातर तो हमें तो फ़रिश्तों का ही इसी तरह से बयान किया गया है। लिहाज़ा ये जो बात है कि ये सारे काम जिस तरह से होते हैं, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये सफ़र था, उनके साथ-साथ अल्लाह ताला ने हमें भी ये चीज़ बयान की कि अल्लाह ताला के यहाँ पे बहुत सारे सिलसिले हैं, और बहुत सारे कामों का मतलब कुछ और हुआ करता है, और हम इंसान उन चीज़ों को किसी और तरह से देखते हैं। तो लिहाज़ा हमें फिर दुआ के लिए भी किससे जुड़ना है? अल्लाह ताला से, अपने लिए भी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, और इसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी में जो भी वाक़या, क्योंकि इंसान को ये फिर फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके बाद चीज़ें कैसी होंगी, या ये कि जो है अब इस वक़्त कैसी होंगी, और मुस्तक़बिल में जो इंसान की खुद अपनी लाइफ़ में आगे आना है, उसका जिसको किसी को इल्म नहीं है, वो मामलात कैसे होंगे। तो इसका जो है अल्लाह ताला के साथ राब्ता बहुत ज़रूरी है। तो हम तर्जुमे की तरफ देखते हैं। तो आपसे ज़ुल्करनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ़्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा-सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फ़रमाई थी, इसे हर चीज़ के सामान भी अनायत फ़रमाए थे। ये ज़ुल्करनैन कौन थे? इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़न पाई जाती थी। अलबत्ता जो यहाँ पे जो इस सूरत में ज़ुल्करनैन का जो है वो ज़िक्र है, वो मुशरिकीन का भी जो तीसरा सवाल था वो उसका एक हिस्सा था। उन्होंने ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। यहूदियों के कहने पे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, और यहूदी चूँकि जो है मुशरिकीन के साथ ज़्यादा गठजोड़ में थे, हालाँकि नबी के आने से पहले वो उनको काफ़िर ही समझते थे, लेकिन अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसद में वो उनके साथ मिलकर के मुख्तलिफ़ तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवालात, और मतलब अपनी तरफ से वो उनको टफ़ टाइम दे रहे होते थे कि शायद इनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं होगा, चूँकि उनके पास वाक़तन कोई जवाब नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही उतरती थी। तो अल्लाह ताला ने तो उस चीज़ का जवाब दिया कि ये जो इसमें जो ये नाम है ज़ुल्करनैन, इसके मानी जो उनसे हैं जो है वो है 2 सींगों वाले। तो ये नाम इसलिए उनका हुआ था कि उनके सर के ऊपर जो वो जिस तरह की पोशाक या कोई टोपी पहनते थे, तो उनके सर पे 2 सींग थे। तो जब वो जिस तरीके से उनकी सारी ज़िंदगी में जो एक्सपीडिशन हुई है, अल्लाह ताला ने जिस जिस जगह पे उनको कहा कि वो उस जगह पे जाएँ, और जो उनका सफ़र था, जो उनकी सल्तनत वग़ैरह थी, उनमें जो वाक़यात हुए, ये उन वाक़यात के बारे में अल्लाह ताला ने आगाह किया। तो हमने इसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फ़रमाई थी, इसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे। इससे मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने जो उनसे काम लेना था, उसके मुताबिक उनको जो है सामान भी जो था वो अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यानी वो एक सफ़र उन्होंने किया जिस जगह के ऊपर जिधर भी हमला करना था, या जिस इलाके को दरियाफ़्त करना था,
वो उस तरफ के। अब जो ज़ुल्करनैन के बारे में बहुत सारी रवायतें हैं और इस तरह से हैं, लेकिन जिस तरीके से कि वो शायद फ़ारिस का अज़ीम हुक्मरान थे। मौलाना जो हैं ख़ास तौर के ऊपर मुफ़स्सिरीन में जो अगर किसी ने रिसर्च किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम जो हैं, उनके सिलसिले में ये चीज़ बयान की जाती है कि उन्होंने जो है तमाम जो ख़ुसूसियात कुरान पाक की ये इसमें आती हैं कि जो है किसी हुक्मरान में पाई जाती हों, तो उन्होंने इसका हामिल सिर्फ़ फ़ारिस के अज़ीम हुक्मरान जो से हैं, जिसे यूनानी साइरस के नाम से और इब्रानी यानी हिब्रू ज़ुबान में ख़ौरिस कहा जाता है, अरब में इसे के खसरू जो है के नाम से पुकारते हैं, उनके बारे में कहा है। इनका दौरे हुक्मरानी जो है वो दौरे हुक्मरानी जो-सा है वो तकरीबन कहा जाता है कि 539 जो-सा है क़ब्ल मसीह है। तो ये फरमाते हैं कि ना 1838 में यानी 1838 में साइरस के एक ऐसे मुजस्समे का भी इंकशाफ हुआ जिसमें साइरस का जिस्म इस तरह दिखाया गया था कि जिसके दोनों तरफ उकाब की तरह पर निकले हुए हैं और सर पे मेंढे की तरह जो है 2 सींग है। तो इससे बात पता ये चलती है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में जो इंसानों को चुना, अपनी जिन पे वही नाज़िल की, उनसे मुख्तलिफ़ काम लिए। तो हमें तब तक नहीं महसूस होता कि कोई इंसान जो है अल्लाह की जानिब से जो है वो किसी काम पे अपॉइंटेड है। यहाँ तक कि जिस तरह से उनकी उनकी जो आम नबियों की निस्बत जो है वो ज़िंदगी में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, जिनके बारे में यहाँ पे ज़ुल्करनैन का यहाँ पे जो हालात बयान किए गए हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पर पहुँचा, उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता पाए। वे कोई ऐसा इलाका था जहाँ पे ऐसे महसूस हो रहा था कि ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी और जो इलाका था वहाँ पे सूरज कौन-सा था वो बाकायदगी तौर पे से गरूब होता हुआ नज़र आ रहा था, यानी कोई मैदानी इलाका लग रहा है। इस चश्मे के पास एक कौम को भी उन्होंने पाया। हमने फरमा दिया कि ज़ुल्करनैन या तो आप इन्हें तकलीफ़ पहुँचाएँ या इनके बारे में कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करें। तो उन्होंने कहा कि जो ज़ुल्म करेगा तो उसे हम भी सज़ा देंगे और फिर अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और उसे वो सख्त अज़ाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल करे तो उसके बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो राह के पीछे लगा यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे कोई और ओट नहीं बनाई। वाक़या ऐसा ही है कि हमने इनके अब्बास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। फिर एक सफ़र के सामान में लगा यहाँ तक कि जब वो 2 दीवारों के दरमियान पहुँचा तो दोनों के इस तरफ से उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस मुल्क में बड़े फ़सादी हैं। अब एक काम करने के बाद जो मुल्क था वो फ़तह उन्होंने किया जहाँ पे कोई चश्मा या समंदर था, जहाँ पे मतलब उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसी आबादी थी जहाँ पे सूरज जो गरूब हो रहा था और उसके बाद वो आबादी को उनको जो भी नबूवत का जो है पैगाम दिया, तो वहाँ पे इनकी बातों से अंदाज़ा होता है कि जो नहीं मानेगा तो उसके साथ जो है अज़ाब वाली बात का, तो इसका मतलब है कि उनकी नबूवत का जो है उन्होंने तब्लीग की और वो जब वहाँ पे जो है वो मामला उनका हो गया उस इलाके में, तो उसके बाद वो आगे चले गए और वहाँ पे जो 2 दीवारों के दरमियान की बात है, तो ये पहाड़ी कोई इलाका है जिसका जैसे कि कोई ज़िक्र किया जा रहा है और वहाँ पे जो कोई बस्ती आबाद थी, ऐसी नस्ल की कि जो कत्लो-गारत ज़्यादा करते थे और ये जिस कौम के ऊपर इस तरह की बात कर रहे थे, उन्होंने ज़ुल्करनैन को जो है इनकी शिकायत लगाई कि ये बहुत बड़े फ़सादी हैं, तो क्या आप हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें? इस शर्त पर कि आप हमारे उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ़ क़ुव्वत ताकत से मेरी मदद करो। अब जो उनकी आपस में नेगोशिएशन हुई और वो वहाँ जहाँ तक पहुँचे थे अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो इनकी नबूवत जो है बाकी अंबिया की निस्बत जो थोड़ा फ़र्क लग रही है कि इनके पास ताकत भी है और ये कोई इंतज़ाम और इंसराम ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको वो भी दिया गया और साथ में इनको इस तरह से कहा गया कि मुल्क में जगह-जगह यानी दुनिया में जगह-जगह जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ये मदद भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो है वो नबूवत को भी पहुँचा रहे हैं। तो बहरहाल जो कोई भी कौम जिसको कोई बात समझ नहीं आती थी या उनकी ज़ुबान उनकी जैसी नहीं थी, किसी भी तरीके से उन लोगों का आपस में जैसे राब्ता हो रहा है या ज़ुल्करनैन उनको जो कह रहे हैं और वो उनका जो जवाब दे रहे हैं, तो उनके दरमियान ये फ़ैसला हुआ कि ज़ुल्करनैन को जो अपने पास उनके असबाब थे, उन्होंने सिर्फ़ उनसे इंसानों की मदद माँगी और जिस तरीके से जो दीवार तामीर करनी थी ताकि वो जो हमला करने वाली कौम थी, वो दीवार की दूसरी जानिब गिरे और इस दीवार को फलांग कर जो है वो अंदर ना आ सके। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम में और इनमें मज़बूत हिजाब बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी गई, तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ, तावक्ते कि लोहे की इन चादरों को आग बिल्कुल आग कर दिया, तो फरमाया, इसे मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। यानी कि ये काम वो खुद करवा रहे थे और या खुद कर रहे थे, तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास ताकत भी थी और दूसरी बात ये कि ये जो जिस किस्म की दीवार बनाई जा रही है, जिसके अंदर के तांबा यानी मेटल्स वगैरह की भी चीज़ें डाली गई, तो पत्थरों की दीवार और जो भी बना के, तो इस तरह से उसमें ज़्यादा मजबूती आ गई कि वो आनन-फानन किसी इंसान के हमले से टूट नहीं सकती थी। तो पर एक तरह से जो आज मजबूत तरीन दीवार बनाई जाती है, तो उन्होंने बहुत बड़ा कोई बंद या दीवार इस तरह से बनाई, जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी। बस ना तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी, ना इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा कि ये सिर्फ़ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा, तो इसे ज़मीन दोज़ कर देगा, यानी दीवार जो-सी है, अल्लाह ताला जब चाहेंगे, इसका कोई वक़्त मुकर्रर होगा, उनको जो वही की गई थी, तो उसके मुताबिक उन्होंने
बताया तो ये दीवार जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ज़मीन तक आ जाएगी, यानी कि ढा दी जाएगी। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है और हक़ है। उस दिन हम इन्हें आपस में एक-दूसरे में गड़मड़ करते हुए छोड़ देंगे और सूर को जो है वो फूँक दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने जब ये बात बयान की तो उन्होंने इस तरीके से जो है कि अल्लाह ताला की जानिब से ये बात बयान हो रही है कि जब ये सूर फूँका जाएगा तो सबको इकट्ठा जो-सा है जो इकट्ठा जमा कर लिया जाएगा। उससे पहले ये है कि वो उनको छोड़ा जाएगा तो आपस में गड़मड़ होते हुए छोड़ेंगे, यानी कोई इतनी तादाद में होंगे कि एक-दूसरे से टकरा भी रहे होंगे जब वो इस दीवार को फलांग के आ रहे होंगे। इस दिन हम जहन्नुम को भी काफ़िरों के सामने ला खड़ा करेंगे और उन लोगों की वहाँ से निकलने के साथ ही जो है वो क़यामत का मंज़र बयान किया गया है और फिर उसके बाद जो-सा है रोज़े महशर का मंज़र है कि काफ़िरों के सामने जो है वो जहन्नुम को लाके खड़ा करना, क्योंकि मुतअद्दिद बार जो आयत है उसमें जो है जहन्नुम का सामने पेश किया जाना जो है वो यौम महशर वाले दिन की बात की जाती है। जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थी और अम्र हक़ भी सुन नहीं सकते थे, यानी कि जो अल्लाह की सच्ची बात है वो इंसानों ने सुनने की परवाह नहीं की, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की सच्ची बात है और कुरान को समझा नहीं या उसको पढ़ा नहीं। तो क्या काफ़िर ये ख़्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा अब मेरे बंदों को वो अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इन कुफ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि बेअतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? इसमें अल्लाह ताला सवालिया अंदाज़ अपना रहे हैं कि और इससे पहले बताया कि जो काफ़िर हैं उन लोगों के लिए तो जहन्नुम की तैयारी की गई है और साथ में सवाल किया गया है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन से इंसान हैं जिनके अमाल जो उनसे हैं ज़ाया चले जाएँगे। वो हैं कि जिनकी दुनिया की ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार होगी, वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक ये जो धोखा है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम अच्छे नहीं हैं, तो जो दुनिया की ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें उनकी होंगी वो आखिर में जाके फिर बेकार हो जाएँगी, यानी उसका रिज़ल्ट उनको वहाँ नहीं मिलेगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ़्र किया। तो यानी कि दूसरे मानों में अगर दूसरी तरह से इन लोगों की तारीफ़ की जाए तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की बातों से जब इनकार करके अपना अमल जारी रखा तो उनका जो दुनिया में नेक काम होगा या अच्छा या बुरा सबका सब ज़ाया हो जाएगा। बस क़यामत के दिन हम इनका कोई वज़न कायम ना करेंगे। तो इंसान इससे पता चला इंसान के अमाल का वज़न होता है और वो वज़न कब होगा? यौम महशर वाले दिन अल्लाह ताला उसकी बात करे। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नुम है क्योंकि उन्होंने कुफ़्र किया और मेरी आयतों को और मेरे रसूलों को मज़ाक बनाया। ये इस वजह से इनके अमाल का वज़न नहीं होगा। जो लोग ईमान लाए उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए अल-फ़िरदौस के बागात की मेहमानी है। तो जन्नतुल फ़िरदौस का ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है कि अच्छे काम करने वालों को जन्नतुल फ़िरदौस मिलेगी। तो अल्लाह ताला हमें भी वो ज़रूर अता करे, तमाम उम्मत मुसलमा को अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिन जगह को बदलने का भी कभी इनका इरादा नहीं होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला ने एक बात की कि अल्लाह ताला की जो बातें हैं या जो इल्म की बातें बयान कर रहे हैं, जब मुख़्तलिफ़ उनके अंबिया गुज़रे हैं या जैसे ज़ुल्करनैन की बात है, इस तरह से बयान करें जो कि इंसानों को नहीं, हमें नहीं पता कि कौन-कौन से ऐसे लोग अल्लाह ताला के बंदे गुज़रे हैं कि जिन्होंने इस तरह की कोई फ़तूहात की हों या काम किए हों। तो और इसके अलावा जो दुनिया और ज़मीन और आसमान की सारी जो नेमतें हैं इनके बारे में अल्लाह ताला जैसे उनका इल्म है, उनका बनाना, उनका करना हमारे ज़हन में भी नहीं है और वो जो भी बातें इस किताब में बयान करें या वैसे इसके अलावा भी जो हमें नज़र आता है और उसका किताब में बयान नहीं है, तो अल्लाह ताला की अगर ये बातें लिखी जाएँ तो स्याही की ज़रूरत पड़ेगी। इंक जो-सी है, अगर तमाम समंदर जो है वो समझें कि इतनी ज़्यादा स्याही बन जाती है तो अल्लाह कहते हैं ये जब सारे समंदर खत्म हो जाएँगे, दुनिया भर के समंदर की बात हो रही है, उसमें कितना पानी होगा, तो फिर उतने ही और वो उस तरह से आ जाए तो भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। यानी कि अल्लाह ताला के पास इतना इल्म है, इतना उन्होंने काम कर रखा है और वाक़तन ये बात समझ आती है कि हम एक ज़मीन पे जो रह रहे हैं इसमें इतना कुछ है, इतने वाक़यात हो चुके हैं, उनको लिखने में कितनी मतलब जो है वो स्याही इस्तेमाल होगी, हत्ता कि यहाँ पे पूरी कायनात में जितने प्लैनेट्स और चीज़ें ये सारा सिस्टम पाया जाता है, ये सब भी तो एक इल्म है और जितने आसमान हैं, उन सब आसमानों पे जो मखलूक़ात है, जो काम कर रही हैं, जैसा कि ज़िंदगी है या जो सब सिस्टम चल रहा है, उसको अगर लिखना लगे कोई, तो वो उस पे कितना मटीरियल खर्च होगा। तो ये उनकी शान है, जो कि हम सोच नहीं सकते। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक ही इंसान हूँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान ही हैं और इनको अल्लाह ताला ने जो है नबी उनको ये दर्जा दिया है और रसूल भी हैं। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है जिसका माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है, जिसे जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो तो उसे चाहिए कि वो नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। तो ये एक बात है कि जिसको अगर ये शौक हो कि उसको अपने रब से मिलना है, तो फिर वो अच्छे नेक अमाल करे। एक तो जैसे कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जन्नत की तज़किरा किया जाता है कि उसको पाने के लिए इंसान नेक अमाल करे ताकि वो दोज़ख से भी बचे और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात का ज़िक्र किया है, तो लिहाज़ा अब ये भी एक ज़हन में रख के नेक अमाल की तरफ देखना चाहिए कि अगर अपने रब से मिलना है, तो जो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे तो डेफ़िनिटली वही मिलेंगे। यहाँ पे हमारी सूरह अल-कहफ़ जो-सी है वो मुकम्मल होती है और सूरह मरियम का आगे जो है वो शुरू होती है। सूरह मरियम भी एक मक्की सूरत है और इसके अंदर 6 रुकू और 98 आयत हैं। क़ाफ़ हा या ऐन सॉद, तो ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का ज़िक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी और जबकि उन्होंने अपने रब से चुपके-चुपके दुआ की थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम का चुपके-चुपके दुआ करना और उनका ये अमल जो है कुरान पाक में और भी जगहों पे इस तरह से बयान किया गया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा पैगम्बर थे और बनी इस्राइल में जो एक नस्ल थी आले इमरान, उनसे इनका ताल्लुक़ था, जिसके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का चूँकि आले इमरान से ताल्लुक़ है और ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी हैं और इनके यहाँ एक बड़ा लंबा अरसा चूँकि बुढ़ापे तक
پہنچ گئے تھے, ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی, اور یہ حضرت مریم کے والی اور سرپرست بھی تھے, اور جہاں پہ ہیکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی, تو اس وقت کی مساجد سمجھ لیجیے, تو وہاں پہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ان کی تھی, کیونکہ یہ بزرگ بھی تھے, ان کے خاندان میں جو ان سے تھے اس مسجد میں, یا جو بڑا ان کا ادارہ تھا وہاں پہ جو ہے اپوائنٹڈ بھی تھے, چونکہ یہ نبی بھی تھے. تو ان کے ذکر سے ہی یہ سورت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ جب وہ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. البتہ ان کے جو پیشہ کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ بڑھئی تھے, یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے, اور ان کی آمدنی کا اسی سے وہ جو ہے وہ اپنا جس کے حلال کماتے تھے. یہ چیز صحیح مسلم کی حدیث 2379 کی ہے, نمبر کی ہے. تو انہوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو اتنا شدید بڑھاپا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں بھی درد جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑا اٹھا, یعنی کہ تمام سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. ان کا اللہ سے امید ایسی ہے, اور یہاں بات کا شاید بتانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دیکھیے ناممکن حالات ہیں, لیکن پھر بھی ان کا ایک جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ ان سے دعا کر رہے ہیں, اور میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. اب ان کے گھرانے میں جو بھی لوگ ہوں گے, یا یہ کہ اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا, حالانکہ ایک دعا ہے جس کا ابھی تک ان کو نتیجہ نہیں نظر آیا, اس کے باوجود اللہ کی ہی تعریف کر رہے ہیں. اور اگر کوئی انسان اس کو سنے تو وہ ان کے اوپر شاید حیران ہو کہ اتنے بزرگ ہو کر کے, بوڑھے ہو کر کے وہ اپنی اولاد مانگ رہے ہیں, جبکہ اولاد کی ہونے کے ان کے اندر تمام امکانات بھی ختم ہو چکی ہیں ظاہری طور پہ. تو جو بھی کوئی ان کے کوئی قرابت داد ہوں گے, یا یہ کہ انبیاء میں جو باصفہ نبوت کی خاص طور پہ یہ جو بنی اسرائیل میں وہ نسل در نسل چل رہی ہوتی تھی, اسی فیملی میں نبی آ رہے ہوتے تھے. اب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور نبوت جو ہے وہ بیٹوں میں جو ہے مطلب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مرد کا انتخاب کرتے ہیں. تو ان کی فیملی میں چونکہ ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں کہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے ہیں یا اولاد مانگ رہے ہیں کہ جو کہ نبوت کے اوپر درج ہو. یہ جو خیال رکھنا ہے یہ اصل میں نبوت کے سلسلے میں ہی کہا جا رہا ہے. میری بیوی بھی بانجھ ہے, بس تو آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیں, جو میرا بھی وارث ہو, یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو, اور میرے رب تو آپ اسے مقبول بندہ بنا لیں. اب تو انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ایک نبی اور ایک بیٹا مانگا ہے. تو اے زکریا, ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اولاد دینی تھی بیٹا, تو اس کی خوشخبری ساتھ دیتے دیتے یہ بھی کہا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا, اور یہ جو نام ہے اس سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام بھی خود رکھا, اور یہ نام کسی اور کا اس وقت تک دنیا میں نہیں تھا. زکریا کہنے لگے کہ اے میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا, میری بیوی بانجھ ہے, اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں, یعنی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز وعدہ کر لی ہے, اور یہ کہ فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے, تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یعنی کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے والدین کے یہاں پہ بھی, وہ یہاں پہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے نہیں موجود ہوتا, تو اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو باقی جو انسان ہوتے ہیں ان کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے, کوئی نشانی. تو ارشاد ہوا کہ آپ کے لیے علامت یہ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوئیں گے, لیکن آپ 3 راتوں تک کسی شخص سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو اے یحییٰ, میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اب یہاں پہ آیات میں جو واقعات اور زمانہ یا ٹائم ہے اسپین, وہ ایک دم سے جمپ کر جاتا ہے کہ جس میں کہ یحییٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیدا بھی ہو گئے, اس قابل بھی ہو گئے کہ ان کو کتاب کی بات معلوم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس وہی بھیج رہے ہیں کہ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. تو یہاں پہ جو ان کی جو ذکر ہے کہ جیسے جو بھی بچہ ان کا ہوا زکریا علیہ السلام کا, اور وہ بڑے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب جو سی تھی اس کے اوپر چلنے کا حکم دیا. اس وقت جو کتاب تھی وہ تورات تھی. ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی تھی, اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. وہ پرہیزگار شخص تھا, یعنی کہ ان کی پرہیزگاری کی جو ہے ایک طرح سے سرٹیفائڈ, ان کو سرٹیفائڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لازم طور کے اوپر ایک پرہیزگار انسان تھے. وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا, اور سرکش اور گناہگار نہ تھا. اس پر سلام ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ مرے, اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلام بھیجا اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا. اور اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے کہ جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. اب یہاں پہ جو یہ بات بیان ہوتی ہے کہ یہ پردہ جو سا انہوں نے کیا تھا, یا پردے میں رہ کر کے وہ رہنا شروع ہو گئی تھیں. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ جو بھی عبادت کرتی تھیں لوگوں کے سامنے نہیں, یہاں پہ خاص ایک ان کا طریقہ کار تھا, یا بنی اسرائیل میں. اب یہاں پہ پردہ کر کے جو ہے عبادت کرنا, جیسے اعتکاف کا موسم آتا ہے تو جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں جو ہے ہر انسان جو سا ایک علیحدہ حجرہ سا بنا دیا جاتا ہے, خیمہ سا, اس کے اندر وہ اپنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے. تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے جو اعتکاف کا جو سنت ہے وہ یہی اسی طریقے سے ہے. تو حضرت مریم کا پردہ کر کے جو ہے وہ عبادت کرنا لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے, یہ بھی اس چیز کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے اپنے پاس اپنی روح فرشتے کو بھیجا. اور بعض جگہوں پہ یہ چیز اس سے مراد آتی ہے کہ
जो जब वो अपनी इबादत कर रही थी तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बन कर के ज़ाहिर हुआ। तो वो इंसानी शक्ल में जो है वो उनके सामने ज़ाहिर हुए, तो जिस पे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो-सी हैं वो उनको देख कर के डर गईं। ये कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह माँगती हूँ कि अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है, तो उन्होंने उनसे इस तरह से क्योंकि जहाँ पे वो इबादत करती थी, चूँकि उनकी वालिदा ने उनको उनकी पैदाइश के वक़्त जो है मन्नत माँगी थी कि उनको जो भी उनकी औलाद होगी उनको अल्लाह की राह में देंगी, यानी इबादत के लिए और अल्लाह की खिदमत के लिए। तो हैकल में वो उस वक़्त जो वाहिद लड़की थी और वहाँ पे पूरी तारीख़ में वो पहली लड़की थी। लेकिन चूँकि मन्नत माँगी गई थी और उनका घराना जो है वो जिस किस्म की वो दर्जा रखता था माशरे में, तो ये चीज़ इस तरह से जो है कबूल कर ली गई कि वो उनकी दुआ कबूल हुई है और लिहाज़ा अब वो जो है लड़की होने के बावजूद भी वहाँ पे वो इबादत के लिए मौजूद थी। तो उस वक़्त जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तरफ जो है वही के साथ भेजा, तो उस वक़्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे रब का कासिद हूँ, मैं तो एक पैगाम लेके आया हूँ। तो ये खुशखबरी भी देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक पाकीज़ा लड़का अता करेगा, जो ये जिस तरीके से यहाँ पे अता करने वाली बात की जा रही है, यानी कि उनको वहाँ तक खबर पहुँचा दी गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ और आपको एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? यानी एक तो उनको मन्नत माँगी गई थी और दूसरा ये कि जिस तरीके से उनको खिदमत के लिए अल्लाह ताला के दीन के लिए इस तरह से ये तो उनकी ज़िंदगी का मकसद जौन-सा था, वाहिद जौन-सा था, वो दीन में जो है वो खिदमत था और शायद उस लिहाज से जो वहाँ पे जो इंसान वहाँ पे रखे जाते कोशिश करते थे दीन में, तो उनके यहाँ पे शादी का रिवाज भी नहीं था और ये कि वो वहाँ पे अपना वक़्त जो है वो लगाती हैं और वो किसी ऐसे रिश्ते में भी नहीं है, तो उनके यहाँ पे जैसे नॉर्मल सूरत हाल है, तो उनके यहाँ पे औलाद कैसे हो सकती है? उन्होंने उस तरह से सवाल किया। तो और साथ में ये भी कहा कि मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। इसने कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, बात तो यही है कि यानी कि जो वो बात कर रही हैं, उनका किरदार बिल्कुल वही है कि वो एक नेक और जो है बाकिरदार खातून है। लेकिन क्या है कि तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही हसान है कि हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत और ये एक तयशुदा बात ये अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है और ये एक रहमत की बात होगी और जो भी वो औलाद होगी वो उसको निशानी के तौर पे पेश करेंगे। तो फिर वो हमल से हो गई, यानी कि उस वक़्त जो गुफ्तगू हो रही थी, तो अब ये चीज़ें अहादीस से जिस तरह से पता चलती हैं कि उनके ऊपर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी या जिस भी तरीके से उनके पास जौन-सा है वो सूरत हाल उनकी हो गई। तो उसके बाद जो है वो यकसू होकर एक दूर की जगह पे चली गईं। तो वो उस हालत में, जबकि उस हालत में आम तौर पे ख़वातीन जो होती हैं उनको मदद की ज़रूरत होती है और उनके पास हमेशा कोई मददगार होता है जब वलादत का वक़्त होता है। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सिचुएशन ये थी कि उनके ऊपर जब ये वक़्त आया तो वो अकेली होकर के एक जगह के ऊपर चली गई और क्योंकि आनन-फानन ये सारी बात हो रही है और फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे ले आया। तो जहाँ पे भी वो जा रही थी तो वो वहाँ पे खजूर का दरख्त मौजूद था और उस वक़्त उनको जो है वलादत का जैसे वक़्त पास आया तो वो उसके नज़दीक आई तो कहने लगी कि ऐ काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। यानी उस तकलीफ़ से भी और उसके अलावा जो सिचुएशन थी कि वो किस तरह से बात करके ये बात किस तरह से बयान करें और उन्होंने उस वक़्त ये जो है उनका जो जज़्बात थे उन्होंने ये बात उस वक़्त कही और लोगों की याद से भी भूली-बसरी हो जाती। यहाँ से ये बात पता चलती है कि एक इंसान जो नेक हो और उसके ऊपर इतनी बड़ी आज़माइश जो है अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ये वो वक़्त आता है और वो उस चीज़ को अकेले सहने के लिए तैयार हो गई थी और वहाँ पे उनको जो आने वाला वक़्त था उसके बारे में भी वो परेशान थी और वो उस तकलीफ़ से जो गुज़र रही थी उसके अंदर भी। और ये वो सूरत हाल होती है कि जो वाक़तन उस वक़्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश होती है और वो उस वक़्त जो है उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की। अब ये गुफ्तगू उनकी और अल्लाह के दरमियान में थी, वहाँ पे कोई ऐसा शख्सियत मौजूद नहीं थी, इंसान नहीं था और अल्लाह ताला यहाँ इस किताब में उनकी वो हालत को बयान कर रहे हैं, उनकी वो गुफ्तगू, उनके जज़्बात को बयान कर रहे हैं। तो फिर इतने में नीचे से ही आवाज़ दी कि आरज़दा खातिर ना, यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते जो कि को भेजा और उनको नीचे से मतलब कि ओट से उनके सामने नहीं वो आए और उन्होंने उनको आवाज़ दी कि वो गमज़दा नहीं हो, गम नहीं करें। तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक चश्मा जारी कर दिया है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये एक और मुआज़ा भी किया कि जो भी चश्मा था या पानी था उस तक उन तक पहुँचा दिया गया। तो फिर इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरें गिरा देगा। तो उस वक़्त उनको कहा गया कि ये जो खजूर के तना के पास वो पहुँच चुकी थी, उसको हिलाएँ तो उनके पास खजूरें जो-सी हैं वो गिर जाएँगी और वो पकी हुई, ताज़ा पकी हुई खजूरें होंगी। तो ये जो 2 बातें यहाँ पे बयान की जा रही हैं, अब जितनी रिसर्च इंसानों के पास मौजूद है, इस हालत में खजूर को जो है खाना, उससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू हासिल होती है, वो अल्लाह ताला ने देखें कैसे उनका बंदोबस्त उस वक़्त कर दिया जब उनके पास कोई इंसान भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि चश्मे का ठंडा पानी, तो वो जो उस वक़्त उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, तो इससे ये पता चलता है कि वो वाटर बर्थ थी और वहाँ पे पानी का मौजूद होना भी कि एक इंसान को अगर प्यास भी लगे और वो अकेली है उस हालत में जिसमें कि इंसान बेहोश भी हो सकता है और ये कि पानी खाने-पीने का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला ने कर दिया है। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि जब किसी के ऊपर जिस हिसाब से उन्होंने वो एक उनको आज़माइश से गुज़ारा जो उनके लिए लिखी गई थी और उसके अंदर उनके लिए तमाम चीज़ों का भी बंदोबस्त अल्लाह ही कर रहे हैं। हमें यहाँ से ये बात समझ आती है कि इंसान की जो भी फिर आज़माइश होती है तो उसमें वो गौर से देखे कि उसके पास उस वक़्त भी क्या-क्या नेमतें होती हैं कि जिसके ऊपर कि इंसान ये कह सके कि अल्लाह ताला ने कितना ख़्याल रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही शदीद मुश्किल वक़्त था जो किसी खातून
खातून पे हो सकता है, और उसमें मरियम अलैहिस्सलाम एक यंग लड़की जो कि उम्र में भी बहुत छोटी थी और वो उस वक़्त मौजूद थी। उन्हें किसी चीज़ का भी कोई तजुर्बा नहीं था और वो कुछ भी नहीं जानती थी, और ये अल्लाह की जानिब से उनके ऊपर ही, उनकी मर्ज़ी से ही उनके ऊपर जो ये एक मतलब हालात आए। तो अब चैन से खा पी और आँखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र आ जाए तो कह देना, यानी यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उनकी पैदाइश हो चुकी है और वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसके बाद भी उनका जो खुराक का बंदोबस्त किया, और जिस तरह से उनको वही हो रही है कि खा पी के आँखें ठंडी रख, और यानी कि इसके खाने से इंसान के अंदर ताकत आ जाती है। और फिर इसके बाद है कि अगर कोई इंसान जब मिले, चूँकि वो जंगल बियाबान में थी, वहाँ पे कोई अभी मौजूद किसी इंसान से वो मुलाकात नहीं कर पाई थी, तो वहाँ पे वो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको ये समझाया कि जब कोई इंसान मिले तो कह देना, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान लिया है और मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। इससे पता चलता है बनी इसराइल के यहाँ पे बात ना करने का भी रोज़ा होता था, तो ये रोज़ा जो है उस तरह से उन्होंने रख लिया। अब ईसा को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आईं, तो वहाँ से तो सब कहने लगे कि मरियम, तूने तो बड़ी बुरी हरकत की है। चूँकि वो तो हैकल में अल्लाह ताला की इबादत के लिए ही गई थीं, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे तो इस किस्म की कि कोई छोटा बच्चा वहाँ पे मौजूद हो, किसी के पास मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती। और जब वो बच्चा को लेकर के आईं, तो उन सब ने उनके ज़हन में कुछ और ख़राब बात को सोचा। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार थी। यानी कि अब उनको वालिदैन की जानिब से ये बात भी सुनाई जा रही है, तरह-तरह की बातें लोग इस तरह से कर रहे थे। उनके हारून की बहन उनको कहा गया है। तो ये यहाँ पे उनकी मुराद ये है कि कोई उनके ऐसे कोई भाई थे या उनसे जिनकी निस्बत या कोई और नबी थे, या जिनके बारे में, चूँकि नबियों का ख़ानदान है, तो उस तरह से उनकी बात करके उनको ये शर्मिंदा कराया जा रहा था कि आप तो उनकी बहन हैं, इतने नेक इंसान की, और आपकी वालिदा भी जो-सी हैं, वो तो एक बहुत ही बाकिरदार औरत है, यानी वो कोई बदकार तो नहीं है। तो उनके ख़्याल में ये उन्होंने कोई बहुत बुरी हरकत की थी, जिसकी वजह से उनके पास ये बच्चा मौजूद था। नाउज़ुबिल्लाह। तो मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें? उन्होंने जिस तरह इशारा किया कि ये बात इनसे बात करें। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फ़रमाई है और मुझे अपना पैगम्बर बनाया है। उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, उसने मुझे नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया है, जो मैं जब तक भी ज़िंदा रहूँ। उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगुज़ार बनाया है, मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। तो एक जो गोद का बच्चा था, अभी थोड़ी देर पहले ही जो पैदा हुआ हो, तो वो अचानक से कैसे बोल सकता है? लेकिन ये अल्लाह ताला का ये भी मौजज़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक लम्हे में जो है वो जैसे कि वालिदा के वो जिस्म में, पेट में वो आ जाते हैं, और साथ ही उनकी पैदाइश भी जो है फ़ौरी तौर के ऊपर हो जाना, ये इंसानी जो सारी तारीख़ है या जिस तरीके से इंसान पैदा होते हैं, ये इसमें बिल्कुल एक अलहदा ही बात है, ये एक मौजज़ा है। और फिर ये कि उनका इस तरह से बात करना, तो इससे पता चलता है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और उन्होंने तमाम बातों का इस तरह से ज़िक्र किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन, जिस दिन कि मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम का जो बयान किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो किताब में बयान किया है, हमें चाहे लगे आज के दौर में भी कि ये ऐसी चीज़ें नामुमकिन हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला कुरान में हमें मुख्तलिफ़ बातें बयान करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का पैदा होना दोनों माँ-बाप के बगैर है। इसी तरह से उनकी बीवी हव्वा का पैदा होना, वो भी किसी माँ-बाप के बगैर है। उनकी तो पैदाइश का जो तरीक़ाकार बयान किया गया कि वो अपने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाई गई थीं, तो वो भी एक बहुत ही अजीब-सी बात लगती है सुनने में। तो उसके बाद जो-सा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस तरह पैदाइश और ज़मीन और आसमान की पैदाइश की बातें की गई हैं, और दरिया का जो समंदर का फाड़ दिया जाना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उसकी बात की गई है। तो मछली का ज़िंदा होके पानी में चले जाना, ख़िज़र अलैहिस्सलाम की जो सारे वाक़यात हैं, और ये जो सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि अनहोनी सी लगती हैं, कि जो आम तौर पे ज़िंदगी में होती नहीं हैं, तो अल्लाह ताला की वो मोजज़े हैं, जिसमें कि यूशा बिन, जैसे कि वो जिस नबी के जो अपने गधे के साथ जा रहे थे, और उन्होंने ज़िंदगी के जो था मौत के बाद की ज़िंदगी का सवाल कर पूछा था, तो उनको 100 साल के लिए सुला दिया गया। असहाबे कहफ 300 साल से ज़ायद सो जाते हैं, और उनका कुत्ता भी, और सब ठीक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो अल्लाह इस तरह के काम कर सकते हैं, वो अल्लाह इस तरह भी ताकत दे सकते हैं किसी बच्चे को कि वो माँ की गोद में जो है वो बात कर सके। तो ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हमें अल्लाह ताला ने जिस तरह से बयान किया, ये है वाक़या, सही वाक़या ईसा इब्न मरियम का। यही वो बात है कि जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं है, बल्कि वो तो पाक ज़ात है। जब वो किसी काम का सरअंजाम देने का इरादा कर लेते हैं, तो वो कह देते हैं कि हो जा, तो वो उसी वक़्त हो जाता है। मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ़ अल्लाह है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फ़िरके आपस में इख्तिलाफ़ करने लगे, बस काफ़िरों के लिए वैल है, यानी हलाकत है, एक बड़े सख्त दिन की हाज़िरी है। अब मरियम अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर भी, अब उसके बाद भी लोगों जो फ़िरका-फ़िरका होके बात करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये है मेरी सीधी राह की इबादत की राह की, और ये आपस में जो इख्तिलाफ़ है, तो ये उसके बाद जो अल्लाह ताला की बात का इनकार कर रहे हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पे बात हो, या ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और तरह की बातें हों, तो ये बातें गलत हैं, इसमें इख्तिलाफ़ मना है। तो इस चीज़ के लिए उस दिन की बड़ी ख़राबी की जो है वो बात की जा रही है, यानी हाज़िरी वाले दिन की। तो क्या खूब देखने वाले, सुनने वाले होंगे कि उस दिन जब हमारे सामने हाज़िर होंगे। लेकिन आज तो ये ज़ालिम लोग सही गुमराही में पड़े हुए हैं, तो इन्हें इस रंजो अफ़सोस के दिन का डर सुना दीजिए कि जबकि काम अंजाम को पहुँच जाएगा, और ये लोग गफ़लत और बेईमानी में ही रह जाएँगे। खुद ज़मीन के ऊपर और तमाम ज़मीन वालों के
वारिस हम ही होंगे और सब को हमारी तरफ लौटा कर लाए जाएँगे। इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान कीजिए। अब ये तमाम बात जो हुई है इसमें यही है कि जो चीज़ को नहीं मानता, जो इस तरीके पे बात करता है, तो वो ज़ालिम लोग है और ज़ालिम लोगों का अंजाम क्या होगा वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया है। तो इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान कीजिए। बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा मैं आपसे इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कभी ये फ़ायदा पहुँचा सके। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं है, तो आप मेरी बात ही मानिए, ये बिल्कुल सीधी राह जौन-सी है और उसकी तरफ मैं आपकी राहबरी करूँगा। इन्होंने अपने वालिद को बताया कि उनके ऊपर वही आती है, अल्लाह ताला ने जो इल्म उनको बयान किया है, तो वो उनको समझा रहे हैं। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज़ आ जाइए, शैतान तो रहम व करम करने वाले अल्लाह का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जी, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अज़ाब इलाही ना आ पड़े कि आप शैतान के साथ ही बन जाएँ। उसने जवाब दिया, क्या इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? यानी कि जो वो बुतों की पूजा करते थे और एक अरसे दराज से करते थे और उनके वालिद जौन से थे वो बुतों के बहुत बड़े पुजारी थे, मतलब उनका दर्जा था पूरी स्टेट में जो नमरूद की थी, तो वो ये इस तरह से उनका काम था। सुन, अगर तू बाज़ ना आए तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा, जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रह। उन्होंने अपने बेटे को अपने से अलग होने का हुक्म दे दिया क्योंकि उनकी वो बातें उनको पसंद नहीं आ रही थी। कहा, अच्छा सलाम, आप पे सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा। यानी उनके वालिद ने उनको वहाँ से चले जाने का कह दिया, तो वो उनके ऊपर इस तरह से बात करके वहाँ से जाने लगे और वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ। सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ माँगने में महरूम ना रहूँगा। यानी कि उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया कि ठीक है, आप जैसा करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये कि वो इस दीन पे नहीं है और वो अपने रब से दुआ माँगेंगे और दुआ माँग के वो कभी महरूम नहीं रहते। जब इब्राहीम इन सबको अल्लाह के सिवा इन सबको के सब माबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक और याकूब अता फरमाए। तो इस पे अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जब अल्लाह की राह में निकले, तो अल्लाह ताला ने ये इनाम के तौर पे उन्हें ये अच्छे बेटे यानी जो अब नबी भी बने वो अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया। इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई। हमने इनके ज़िक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। यानी उन्होंने अल्लाह की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी, उनकी राह पे चले, बात मानी, तो अल्लाह ने भी उनके ज़िक्र को भी बुलंद कर दिया। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसको अमर कर देते हैं। हमें तो इन आयत से यही समझ आ रहा है। इस कुरान में यानी अल्लाह की दोस्ती इतनी अच्छी है कि अल्लाह ताला अपने दोस्त को कभी भी नहीं भूल रहे और इस किताब में कितने साल पहले ये गुज़र चुके हैं, लेकिन इनका इनका अच्छा ज़िक्र जारी है। हत्ता कि हम जो दुरूद इब्राहीमी जो पढ़ते हैं उसमें भी उनका नाम भी इसी दरूद से है और उनके नाम से है ये दरूद और साथ में उनका भी उनकी आल के ऊपर भी दरूद भेजा जाता है। तो अल्लाह ताला जिसको चुनते हैं उन नेक लोगों के ऊपर दरूद भेजने वाले भी अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। इस कुरान में जो है वो मूसा का ज़िक्र भी कीजिए जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। तो ये जो पीछे आयत में तज़किरा है ना कि इनके ज़िक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। तो ये जो बुलंद तरीन दर्जा वो यही है कि उम्मत मुहम्मदिया में भी जो हमारी नमाज़ भी है उसमें हम इब्राहीम और उनकी आल के ऊपर भी दरूद भेजते हैं और इसके अलावा भी जब इबादत में और ज़िक्र में जब ये दरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो उसके अंदर भी उनका ज़िक्र मौजूद होता है। तो ये एक तरह से ज़िक्र बुलंद करना ना हुआ, यानी कि जो भी मुसलमान होगा वो इनके साथ यही वाला काम इस तरह से होगा, उनका ज़िक्र किया जाएगा। तो ये है अल्लाह ताला का की दोस्ती का कमाल, ये है अल्लाह ताला की दोस्ती को, वफ़ा को निभाना। तो कोई इतनी कदर करना, तो क्या शैतान की जानिब ये चीज़ें, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा सिला मिलता है? तो यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ कि जो रसूल और नबी भी थे और हमने इसे तूर की दाई जाने से निदा की और राज़गोई करते हुए उसे करीब करे, यानी अल्लाह ताला ने उनसे राज़ की बातें की इस पहाड़ पर बुला कर के तूर की दाई जाने से निदा की। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने निदा होती है जैसे किसी को आवाज़ निकालना, कोई अपने काम से मसरूफ़ हो और उसको उस तरफ बुलाना। और अपनी ख़ास मेहरबानी से इसके भाई हारून को नबी बनाकर इसे अता फ़रमाया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने फ़िरौन के दरबार में जब अल्लाह ताला ने उनको जाने के लिए कहा था, उनके ऊपर जो वही आई थी कोहे तूर पहाड़ पे, तो उन्होंने अपने साथ अपने भाई हारून को जो है वो माँगा था कि वो उनके साथ जो है एक क्या कहना चाहिए, नबी के तौर पे भी और एक सहारे के तौर पे भी उनको भेजा जाए। और क्योंकि वो अकेले उसके दरबार में नहीं जाना चाहते थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। इस किताब में इस्माइल का वाक़या भी बयान कीजिए कि वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखिए बनी इसराइल का तो बहुत ज़्यादा जो है वो तज़किरा में और उनके तमाम अंबिया का बारी-बारी उस से ज़िक्र आता है। हज़रत इस्माइल का कभी-कभार उनके साथ और ज़्यादातर हज़रत इस्माइल के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। तो हज़रत इस्माइल जो हैं उनका अल्लाह के यहाँ पे क्या दर्जा है, जिस तरह से वो अल्लाह ताला बयान करे कि वो अपने घरवालों को बराबर नमाज़ और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। ये उनके बारे में अलहदा से अल्लाह ताला ने पहली बार यहाँ पे कुरान में इस मकाम में सूरह मरियम में उनका ज़िक्र किया है। और देखिए चूँकि हैं तो वो भी आले इब्राहीम में से ही, और देखिए कि उनकी उनकी क्या ख़ुसूसियत थी कि वो अपने घर वालों को बराबर नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे। इससे पता चला कि अल्लाह के यहाँ पे जो पसंदीदा और मकबूल बंदे होते हैं, उनके अंदर एक ये ख़ासियत भी होती है कि वो अपने घर वालों से, अपने आप से, फिर अपने घर वालों से जो है वो शुरू करते हैं तबलीग और घर वालों को नमाज के लिए कहते हैं, उनको ज़कात के लिए कहते हैं। ये बुराई नहीं होती है।
تو देखिए कि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नज़दीक अच्छाई क्या है और दुनिया के नज़दीक अच्छाई क्या है। तो फिर सवाल यहाँ आ जाता है कि अल्लाह किस तरह से चलना चाहते हैं, और देखिए घर वालों को क्यों देना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। हमारे घर वाले जो कुछ भी मर्ज़ी कर रहे हों और उनको हमें वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या फिर ये है कि जो नेकी के काम है वो याद दिलाने पड़ते हैं। घर में हर तरह की उम्र के अफ़राद होते हैं, हर तरह की सेहत के मुताबिक अफ़राद होते हैं। कभी किसी की सेहत भी ख़राब होती है, छोटा हो या बड़ा हो। इसी तरीके से हर तरह की उम्र के लोग होते हैं, हर तरह की दिलचस्पियाँ होती हैं। जैसे अगर हम वक़्त के साथ-साथ तब्दील हो रही हैं, वक़्त के साथ-साथ हम कोई चीज़ें सीखते जाते हैं, इसी तरह हर उम्र में भी होता है। तो फैमिली का मतलब क्या होता है कि जहाँ कहीं पे कहीं ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मदद की जाए। जहाँ कहीं पे कोई जैसे कहना चाहिए दीन के काम में कमज़ोर है, या दुनिया का भी काम हो कि जिसको हासिल करना है और वो उसकी कोशिश में लगे हुए हैं, वहाँ पे उसकी मदद की जानी चाहिए। तो जैसे एक दीन का इल्म होता है, दीन के काम होते हैं, इबादत होती हैं, वहाँ पे कोई कमज़ोर हो तो उसको बार-बार कहने से या एक-दूसरे को रिमाइंड करने से एक माहौल बन गया ना, कि घर में जो है नमाज़ जो-सी है उसका ख़्याल किया जाता है, सब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगर मर्द और औरतें हों तो अगर ये कहना चाहिए मर्दों को तो वैसे नमाज़ पढ़नी चाहिए मस्जिद में, लेकिन ये है कि कभी-कभार जो है घर में जो है ज़्यादा लोग अचानक इकट्ठे हो जाएँ तो जमात भी कराई जा सकती है, और इसी तरीके से और मसाजिद अगर दूर हों तो। तो बात ये है कि इसी तरीके से कोई भी नेकी का काम है उसमें एक साथ जो-सा है साथ देना, मिलके प्लान करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं, लेकिन उनमें सबसे टॉप पे अल्लाह के बताए हुए अहकामात हैं और अल्लाह के बताए हुए शायर अल्लाह है। नमाज़ भी एक शायर अल्लाह है, ज़कात भी एक शायर अल्लाह है। इसमें अगर घर में कोई इस बात के ऊपर कोई कहता है और उसके ऊपर कोई बुरा बनाए, तो वो बात ये होती है कि इनको ये आयत पढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखिए अब दुनिया के क्या मामलात होते हैं, दुनिया में आप देखें कि बहुत सारे जैसे कि कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो दुनिया में, तरह-तरह के किसी जगह के ऊपर जो कोई काम के लिए जाना है, वहाँ पे किस तरह फैमिली ही मदद कर रही होती है, एक-दूसरे के साथ खड़ी हुई होती है और हर जगह पे काम आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से नेकी के कामों में जो दीन का काम होता है, वहाँ पे भी फैमिली की ये हेल्प होती है। तो हमारी जैसे हर तरबियत सारा वक़्त हो रही होती है, बड़े हों या छोटे हों, उसमें एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं होता। बहुत कम ऐसी मिसालें हैं क्योंकि कि किसी को कोई ज़रूरत ही ना हो। आजकल तो जैसे गैजेट का दौर है, तो सबको अगर पता नहीं चला नमाज़ का वक़्त हो गया है, अज़ान का वक़्त हो गया है, तो एक-दूसरे को या बच्चों को ख़ास तौर पे जो ज़्यादा खेल में और कहना चाहिए टेक्नोलॉजी में और गैजेट्स में उलझे हुए हैं, उनको कहना पड़ता है। तो ये एक ड्यूटी है, ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह वालों का शायर है, ये अल्लाह वालों की एक तरह चाहिए कि उनकी आदात में से शामिल है, उनकी ड्यूटीज़ में से शामिल है और ये अल्लाह ताला को पसंद है, ठीक है? तो अल्लाह ताला सबके घरानों में जो है ना इस चीज़ को एस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि ये वो वाहिद तरीका है जिससे शैतानी हमलों से बचा जाता है। और क्योंकि नमाज़ जो-सी होती है वो अल्लाह मोमिन की मिराज है और अल्लाह से नज़दीक कराती है। उसी तरीके से जो नमाज़ पढ़ता होगा, तो उनके अगर कोई गुनाह हो या किसी मुश्किल काम में फँसे हुए हैं, या ये कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो फ़ोकस नहीं हो पा रहा, तमाम चीज़ें नमाज़ हल करेगी। ज़ाहिर-सी बात है नमाज़ के बाद दुआ जो की जाती है, तो और नमाज़ खुद एक दुआ है, उसके अंदर भी दुआएँ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि जो दुआएँ बाद में लोग पढ़ते हैं, उसको नमाज़ के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने बहुत जो है अच्छी आदत बयान की, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से पूछा था अनअमत अलैहिम वाले लोगों की बातें बताएँ। तो जो बातें बताई जाती हैं, तो उसमें फिर उनकी आदत बताई गई हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इन्हीं आदत के ऊपर अपने अंदर भी ये चीज़ें पैदा करनी, ताकि हम अनअमत अलैहिम वाले हो सकें और अपने घरवालों को बराबर नमाज़ और ज़कात का हुक्म देता था, और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। इस किताब में इदरीस का भी ज़िक्र कीजिए, और वो भी नेक किरदार पैगंबर था, इनके भी किरदार की तारीफ़ हुई, हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे, और नूह अलैहिस्सलाम के या इनके वालिद के दादा थे। उन्होंने ही सबसे पहले कपड़े सिए थे। रिफ़त मकान से मुराद ये है कि ऊपर उठा लिया, जो है इसका मतलब है कि बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये समझा है कि शायद उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया, कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जैसे उनको उठाया गया है। लेकिन कुरान के अल्फ़ाज़ इस मफ़हूम को उस तरह से नहीं बयान कर रहे, कि किसी सही हदीस में भी ये बयान नहीं हुआ। अलबत्ता इस्राएली रवायात में इनके आसमान पर उठाए जाने का ज़िक्र मिलता है। बहरहाल बात ये है कि अगर कोई चीज़ हमें हदीस से साबित हो जाए, तो हम उस वाक़ये को हमें उसको मानना चाहिए। बाकी चीज़ों को लिए हम ये नहीं कह सकते वो कितनी सच हैं, क्योंकि उनकी किताब में और रवायात में बहुत तब्दीलियाँ की गई हैं। इसलिए ज़्यादा बात यही मालूम होती है कि उनको कोई ऐसा मर्तबा अता किया गया था, जिसकी वजह से उनको जो है अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उनके दर्जात बुलंद किए गए हैं। तो ये वही अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ने फ़ज़्ल व करम किया, जो औलाद याकूब में से हैं। इनकी नस्ल उन लोगों की नस्ल में से है जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर चढ़ा दिया था, और औलाद इब्राहीम और याकूब से हमारी तरफ से राह याफ़्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से हैं। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते और रोते और गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे। देखें अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी हुई थी। नंबर 2 वो नबूवत भी उनको मिली हुई थी। नंबर 3 उनके अमाल, उनकी तमाम चीज़ें उसकी पाबंद थीं। वो कोशिश भी करते थे अल्लाह, और नंबर 4 ये कि अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन, हिफ़ाज़त, रहमत, तौफ़ीक, ये तमाम चीज़ें भी मिली हुई थी। अब उसके बाद भी जो सब कुछ यानी दीन हिदायत के ऊपर, दीन इब्राहीमी कह लें, अल्लाह ताला की हिदायत कह लें, उस पे चलते हुए भी जब उनके सामने आयत आ जाती थी, तो फिर आपके दिल में सवाल पैदा होना चाहिए कि वो क्यों रोते और गिड़गिड़ाते थे? हमें तो सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला से माँगनी है वो हिदायत है, और फिर उस हिदायत को जब हमें पता चल रहा है कि मुसलसल जो हमें अल्लाह से ये भी माँगना है कि प्रोटेक्शन मिले, कि हम हमारा कामयाब जो-सा है यहाँ से जो है विज़िट हो इस दुनिया का, और फिर आगे की भी कामयाबी माँग रहे हैं। उसके बावजूद जो-सा है, क्योंकि अल्लाह के ऊपर हमें नहीं मालूम कि आगे मुस्तकबिल में क्या गैब के हालात हैं, हमें नहीं मालूम, हमारे सामने मुस्तकबिल नहीं, हम अपने हाथों से नहीं दिखते। किसी भी किस्म की ऐसे हालात और वाक़यात नहीं इंसान को पता होती कि क्या हो जाएगा, और ये वाक़तन इंसान के पास ताकत नहीं है। तो वो क्यों रोते और गिड़गिड़ाते थे?
جبکہ ان کے پاس ان کو پتہ تھا کہ وہ سچ اور حق کے اوپر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی چھوٹی سی بھی برائی کو جو ہے اس کو بڑا سمجھنا چاہیے، اور یہ کہ بعض دفعہ جو رونا اور گڑگڑانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے وہ اس کے شکر کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر جو انسان کی زندگی میں سب ہر اپنی جگہ پہ ہر کوئی آزمایا جاتا ہے، تو یہ کہ مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے، چاہے جس طرح سے بچے لپٹ کے ضد کر کے مانگتے ہیں اس طرح سے بھی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اور اس سے اپنے جذبات کا اظہار کر کے، اور یہ کہ وہ ان کی جب حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کتنے طاقتور اور کس درجہ کے ہیں، تو انسان ان کے آگے جو اپنے کہنا چاہیے ان کا دبدبا، ان کا روب، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو ہستی کی حقیقت ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی انسان اللہ کے آگے جو جھکتا ہے، تو کہنا چاہیے کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں رونے اور گڑ گڑانے کی، اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ جب ہدایت مل چکی ہے تو اب ان کو ان کے آگے رونے کا کیا کام، اور ان کے آگے ان سے جڑنے کا کیا کام۔ انسان کی 24/7 میں، اور یہ کہ مہینے بھر میں کوئی تو ایسے مقام آتے ہوں گے کہ جب اس کو ایمان لو فیل ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے اس کو تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، طبیعت کی بھی خرابی ہے، یا کچھ بھی ہے، یا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پایا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اللہ تعالیٰ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا، اور یہ وہ عادت ہے، یہ وہ خاصیت ہے کہ ہر صورتحال میں اگر کوئی بھی بات کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے، اللہ کو ہر طرح کے ایموشنز جو سے ہیں، اس میں بدتمیزی اور وہ غصے اور وہ والی بات ہی نہیں آ رہی، کیونکہ جو ساری کہانی اور حقیقت ہے، اور چاہے انسان سے بعض دفعہ کے اوپر کوئی بات منہ سے نکل نہ رہی ہو، تو وہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، کہ جو دل میں ایک مطلب جو بات ہوتی ہے جو کہیں نہیں جا رہی، وہ بھی رونے اور گڑگڑانے میں آ جاتی ہے، تو وہ اللہ کے آگے کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ رب سے جو ہے نا اس لحاظ سے جڑنا اور ہر لحاظ سے جڑنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ تو جب ان کی آیات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیات پڑھی جاتی تھی، تو وہ اس لیے چونکہ وہ اللہ کی قدر کو پہچان چکے تھے، تو سجدے کرتے اور روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے۔ تو پھر ان کے بعد ایسے ناخل پیدا ہوئے، یعنی یہ ان کا اللہ سے رابطہ تھا، نہ جو اللہ کے آگے گرتا ہے، اللہ سے آس لگاتا ہے، اللہ کو اپنے تمام کام سونپتا ہے، وہ انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے اوپر تکبر میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کہتا کہ میں یہ کر لوں گا۔ یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جس میں پہلے اللہ کو کہا گیا، اللہ نے انسان کو توفیق دینی ہے، یا انسان کا کسی جگہ سے کام ہوگا، مسائل حل ہوں گے، یہ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی ہر اچھائی، اپنی ہر طاقت، اپنی ہر چیز اللہ سے منسوب کر دینا، اور اللہ کے آگے جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ جڑ جانا، یہ ہے وہ ایک ایگزامپل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں ناخلفوں کو ناخلف ہونے میں سب سے پہلے جو چیز آئی وہ تھی نماز کا چھوڑنا، اور یہ اللہ والے پیچھے جو حضرت اسماعیل کی بات آ رہی ہے کہ وہ بار بار نماز کا حکم دے رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے کو کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ مال کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں ہے ہونی چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے، بار بار نماز کا حکم، اور نماز کیا ہے کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، باقی ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے۔ ناخلفوں نے سب سے پہلے پھر نماز چھوڑی، تو وہ کیا ہوا، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ شیطان کا جو ان کی پروٹیکشن کمزور ہوئی، تو شیطان نے حملہ کر دیا اور ان کو دنیا کی چیزوں کی طرف لگا لیا۔ سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ تو پھر جو انہوں نے نقصان کیا دنیا میں، تو ظاہر ہے کوئی آ کر رشتہ روکتا نہیں ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کسی کو ہو ہی نہ، جو اللہ کے راستے کچھ بہت سے کافر ایسے بھی تو ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں وہ چھپے اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو کچھ نہیں ہوا، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کے بھی آزمائش میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے تمام کام اچھے جا رہے ہیں، یہ جس کام میں ہم مطلب کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں ہم لوگ تو جو ہے اللہ کے حدود کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمارے یہ کام فلاں نہیں ہو رہے۔ یہ ایک ایکچولی تھوڑے وقت کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اگر انسان سمجھ سکے۔ ہر انسان کے پاس اپنی نماز ہے، ہر انسان کے پاس اپنی دعا بھی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے، آپ کی فیملی اور جو مسلمان کمیونٹی جہاں پہ مساجد ہیں، قرآن کی محفلیں ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کی دعائیں لیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو خدمت ہوتی ہے، یا یہ کہ جو بھی نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں جو ہوتا ہے خود بخود اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ وہ نیکی کا کام رجسٹر ہو جاتا ہے، وہ دعاؤں کی وہ مطلب کہنا چاہیے سلسلے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر کے اور وہ اس طرح سے کرنا، تو یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ تو بعض دفعہ جو بڑا اچھا کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر ان کے کام بہت غلط ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بڑی ترقیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولادوں کے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے ان کا نقصان آگے آئے گا، کیونکہ آگے کی کہانی تو کسی کو پتہ نہیں، سوائے ان کے جو توبہ کر لے، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشہ کی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندے سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لفظ بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں انہی کو بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ اللہم نجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چیز بیان کی، جسے پہلے بھی سورہ یاسین میں بلکہ جس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ اسلام قولٌ من ربہم، تو یہ جو جنت کا سلام ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیے بہت سارے لوگ جو اس وقت ایمان لے کر کے آئے تھے، انہیں کتنی بری باتیں معاشرے میں سننی پڑتی تھیں۔ اب بھی جو معاشرے میں حالات ہیں کہ جو دین پہ زیادہ چلتے ہیں، اب تو خیر کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کو طرح طرح کی باتیں اگر سننی پڑتی ہیں، تو یہ آیت ہے کہ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، کوئی ایسی بات جو گھروں کے اندر یا گھروں سے باہر دین پہ چلنے والے لوگوں کو سننی پڑتی ہو اگر، تو وہاں ان کو یہ اس آیت پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ
ایک موقع آئے گا اور وہ دور آئے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں صرف سلام ہی سلام سنیں گی، اچھی باتیں ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا، اور جو رزق ہے وہ دنیا کے رزق سے بہت ہی جدا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، سبحان اللہ۔ وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ رینت، نہ بول و براز، یعنی تمام دنیا کے جو انسان کے اندر جو سسٹم ہے نا، جو گندگیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوں گی، اور ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کے جو جہاں پہ وہ کہنا چاہیے خوشبو جلائی جاتی ہے، اود دانوں کا ایندھن کا اود، اور جو خوشبودار لکڑی ہوگی ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ ان کی جو باڈی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ باڈی اس طرح کی جنت میں دیں گے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے جو ہڈیاں اور جو وینز اور اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں ان کی خوبصورتی اجاگر ہوگی، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے، یا دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، اس کا قد لمبا ہے، خوبصورتی ہے، اسکن اچھی ہے، یا رنگت زیادہ گوری چٹی ہے، یا کچھ بھی ایسے کوئی بات ہوگی، تو ارد گرد کے لوگ حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو نظر لگ سکتی ہے، یہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ تو یا کسی جگہ پہ وہ جائیں اور لوگ جو ہے ان یا کوئی ایسی خصوصیات دی ہوں تو لوگ حسد کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اس آپس میں بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل اور ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی وہاں پہ رہنے والے جو گروہ ہوں گے، جو جنتی لوگوں کی خصوصیات ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی کوئی دنیا میں جو نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر وہ نہیں ہوگی، اور وہ جب ایسی نیگیٹیوٹی نہ ہو تو انسان آپس میں بالکل پیورٹی کی طرح جڑ جاتے ہیں، تو یہ کہ ان کے دل ایک طرح کے ہوگے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ تو صحیح البخاری کی حدیث 3245 ہے، صحیح مسلم کی حدیث جو ہے 2834 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنتی جو ہوں گے، جو دنیا میں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں اسکن اچھی کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں مطلب ایسا رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی لگژری ہو، اور ہم خوشی سے کسی چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس چیز کا کے لیے ایک تو کوشش کو ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاصل اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر حاصل ہو جائے کسی کو تو وہ یہ ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ اس کا مسلسل رہنا نہیں ہے، اس کی مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ ہر کسی سے نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس انسان کے خلاف اور بہت ساری چیزیں جو ہے محاذ کھل جاتے ہیں، پورٹل کھل جاتے ہیں، تو کہنا چاہیے کہ دنیا میں نا کسی کی اپنی نعمت کو محفوظ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ تمام چیزیں جو جنت کی بیان کی جا رہی ہیں یہ وہاں کے کہنا چاہیے کہ پہلے سے ہی دیے گئے جو ہے مطلب درجے ہیں، اور وہاں کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنت کو مانگنا چاہیے کہ جہاں پہ اس طریقے سے جو ہے یہ تمام چیزیں ملیں گی، یہ ہے وہ جنت جن کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں کہ جو متقی ہوں، اور ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کچھ چیزیں ایسی کی ملکیت ہیں میں ہے جو تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تمام چیزیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اترنے والے نہیں، یعنی کہ جو ہم کا سیرا ہے اس کے اندر فرشتوں کی پوری فورس اور ان کی پوری امت کہہ لیں، ان کی پوری مخلوق اس کو کہہ لیں کہ ان کی پوری جمعیت شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے جتنے کام لیتے ہیں ہمیں تھوڑے بہت بتائے گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں خالی پیغام کے لیے تو فرشتے نہیں ہوتے، فرشتے تو ہر عمل کے لیے، ہر چیز کے لیے، اور اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس شکل میں پیدا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ یہ اس طرح سے جو ہے نہیں کام ہوتا کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آئے، فرشتے سامنے آئے، ایسے نہیں ہوتا، وہ ایک وقت انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، اور لہٰذا اسی وقت وہ کام ہوگا، آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان کا ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کریں، اس کی عبادت پر جم جائیں۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس کا ہم نام اور ہم پلہ اور بھی ہے؟ تو یہاں پہ عبادت کا اور نماز کا جیسے کہہ لیں، ذکر کا کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ کر کے یاد دوبارہ سے سوال پوچھا ہے، کیا اور بھی آپ نے دیکھا ہے؟ سوال گرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا، اور اب تک جتنی باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے اس مقام پہ آ کر کے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ابھی تک جتنی کوالٹیز ہم نے، خصوصیات، صفات ہم نے ان کی پڑھی، جو کچھ انہوں نے دین اور دنیا کا بتایا ہے، آسمانوں کا بتایا ہے، انسان کے اندر کی باتیں بیان کی ہیں، اتنا ڈیٹیل میں جا کر کے کہ کوئی اگر کفر کرتا ہے وہ کیسے کر لیتا ہے، منافقت کرتا ہے، فاسق ہوتا ہے، یا وہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس چیز کو مطلب کس وجہ سے وہ ایسٹرے ہو جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اتنی کوالٹیز کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا، اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی اور ریسرچ رکھنا، اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے یہ بات اس طرح سے نہیں کی ہے، کوئی ایسی